महाकुंभ में विदेशों की गहरी आस्था है। वहीं पर एक आश्रम में 9 महामंडलेश्वर विदेशी हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत कर बताया कि उन्हें सनातन धर्म बहुत अच्छा लगता है। सालों से वो भारत में रहकर सनातन धर्म से जुड़ी हैं। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गंगे माँ, हर हर गंगे। जय गंगा माँ। You feel very great here? Yes, Ganga Ma is mother. Every day when we bathe, when we have our snan in Ganga Ma, this is a purification. This is a washing that allows us into our liberated state, into our expanded state. Each morning when I go down to Ganga and have my snan, I feel such a sense of exuberance. And I see millions coming from around the world for this exuberance, for this purification, so we can step into our joy in life. If you want to feel God, meditation is the only process. Om Jai Jai Sai Ma. My name is Dayananda Das Maharaj. I'm from Israel, but I would say I'm from the mother India. For me, India is the mother of all. I feel here at home, and I live in Kashi also, and it's a great honor and privilege to be here. Message Bharat is giving to the whole world. Jai Jai Sama, Jai Shri Krishna. To be here in India at the Kumbh Mela is a true honor. It's a very high honor to be in the spiritual kingdom where so many millions of people are coming together for the purpose of connecting with Atma, the purpose of connecting with heart, with self, and to come all in this field of devotion, to look in each and every person's eyes, so much devotion, so much love there for Atma, for one another. It is truly amazing and truly a blessing to be here. From which country you are? And I live in my name is Swami Parameshwara Das. I live in Kashi, and I'm originally from the United States. you are from the States? Yes. And you are in India since how many years? 30 years. 30 years. I've been with Mataji for 30 years. You have been with Mataji for 30 years. And how do you feel here, this spiritual world? How do I feel in the spiritual world? Well, this is the 5th Kumbh Mela I've been at, and I've been coming to India, to Bharat, for 30 years. So I feel, of course, I'm attracted. Very much so, I feel that I'm in my heart. Just as when I met my guru, I felt such love, prem, that I'd never felt before. And when I'm in India, I see all the joy and all the love of everyone when we're at the Sai Snan and we're going by and we're throwing flowers. The eyes and the love and the prem and the bhakti of everyone is what touches me. And that's why I've been coming for 30 years and I'm with my guru. Do you want to recite some mantra or shloka, Yes. Sanskrit shlokas? Yes. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mritoma Amritam Gamaya। और महाकुंभ में हर तरफ अखाड़ों की चर्चा, लेकिन अखाड़ों का खर्च कैसे चलता है? इतनी बड़ी संख्या में रोजाना अखाड़ों के खाने पीने, रहन सहन का खर्च कौन उठाता है? इसे लेकर हमारे संवाददाता ने अखिल भारत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी से बातचीत की। कुंभ और महाकुंभ में प्रयागराज की धरती पर अखाड़े आते हैं और अखाड़ों में तमाम कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। पूरे महाकुंभ के दौरान यहाँ पर भंडारे चलाए जाते हैं और जो यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं उसमें भी काफी व्यय होता है और इसको लेकर भी यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था चलती है और इसके लिए तमाम पदाधिकारी अखाड़ों में नियुक्त किए जाते हैं। पंचश्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी में किस तरह की व्यवस्था होती है, कौन कौन से पद होते हैं और किस तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है और ये पैसा कहाँ से आता है जिससे इतने बड़े भंडारे चलते हैं और तमाम जो इसका ऑडिट होता है वो सब कुछ कैसे होता है। बातचीत के लिए निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत
रविंद्रपुरी जी हमारे साथ हैं, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी प्रणाम करता हूं आपको। ये बताएं कि किस तरह से अखाड़ों की व्यवस्थाएं चलती हैं, जिस तरह से बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं, अखाड़े में तमाम साधु संत होते हैं और पूरे कुंभ के दौरान यहाँ पर 45 दिनों तक जब ये मेला चलता है तो इसमें भंडारे चलते हैं, तमाम खर्च होता है। इसका कैसे ये सब किया जाता है, कहाँ से आता है ये सब? न्यूज 18 को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो परंपरा है, हमारे यहाँ इसका नाम चेहरा मोहरा, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ 2 प्रधान होते हैं, वो गिरिपुरी से होते हैं। उनका कार्य है जितना भी हमारा खर्चा है, जो मेले का खर्चा है, उनका कार्य उसको कैसे पूरा किया जाए, कहाँ से लिया जाए, वो उनका काम होता है। और जो धन की आप बात करते, धन हमारा अपना अखाड़े का होता है। हम चंदा नहीं लेते, हमने कभी किसी से डोनेशन आज तक नहीं ली है। जितने भी अखाड़े आपको मिलेंगे वो डोनेशन नहीं लेते हैं। हमारी परंपरा, हमारी अपनी जागीरी है, हमारी अपनी जमीन है, हमारी हजारों एकड़ जमीन है, वहाँ से खेती होती है, हमारे अपने फ्लैट है, वहाँ से किराया आता है, हमारे होटल है जो हमने लीज पे दिए हुए, वहाँ से हमें रेंट आता है, और हमारे कॉलेज आदि भी, विद्यालय भी है जहाँ से हमें पैसा आता है, मठ मंदिरों से भी, मठ मंदिरों से पैसा आता है। आपने देखा होगा जो हमारी व्यवस्था है पूरे मेला क्षेत्र में, जहाँ जहाँ आपको हमारी शाखाएं मिलेंगी, कहीं आपको जो रिसेप्शन होता है वो नहीं मिलेगा, रिसेप्शन पे चंदा नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा हमारे जितने भी अखाड़े हैं, हम हमेशा जनहित के लिए कार्य करते हैं, और यहाँ सुबह से शाम तक जितने भी जो भी कोई श्रद्धालु यहाँ आता है, सबके लिए भंडार खुला रहता है। और हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ धन का भी दान होता है और अन्न का भी दान होता है, दोनों दान चलते रहते हैं। महाराज जी कौन कौन से प्रमुख पद होते हैं अखाड़े में जो कि ये पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं? देखिए, हमारे अखाड़े में 8 श्री महंत होते हैं। वो 8 श्री महंत ही अखाड़े के मुखिया होते हैं। उन्हीं के संचालन में पूरे हिंदुस्तान में जितनी हमारी शाखाएं हैं, उनका संचालन वही श्री 8 महंत करते हैं।